Okay, no issues. Uh, Good evening to everyone present here. I, Avneet Kaur, volunteer of Sambhav Initiative and moderator for today's event. On behalf of organizing committee, I extend a warm welcome to our esteemed dignitary, Ms. Vandana Gai ma'am, and to all the participants in this 2 weeks online national capacity building program on art of contract drafting from fundamental to enforcement, organized by Sambhav Initiative, which is working towards alternative dispute resolution, free legal aid, mental health, and creating legal literacy under the direction and guidance of Patron in Chief of Sambhav Initiative, Honorable Justice C.K. Thakkar, sir, former Judge of Supreme Court of India, and Patron of Sambhav Initiative, Honorable Justice M.R. Shah, sir, former Judge of Supreme Court of India, in collaboration with Pro Bono India, which is working towards legal aid and legal literacy, where today's session is all about intellectual property agreement. We are privileged to have with us and to introduce Ms. Vandana Ghai ma'am, a distinguished legal professional with extensive experience spanning litigation, legal education, legal aid, and legal research. Ma'am is a practicing advocate, actively handling civil and criminal matters at the Delhi District Courts. Ma'am has previously served as a guest faculty at Law Center 1, University of Delhi, where ma'am taught a wide array of subjects including family law, Indian Penal Code, evidence, procedural law, and white collar crimes. Her commitment to access to justice is reflected in her role as Legal Aid Counsel with the Delhi Legal Services Authority, North East District, where ma'am conducted awareness lectures and Mahila Panchayat sessions focused on Domestic Violence Act. Ma'am has also served as a jail visiting lawyer at Mandoli Jail, gaining first-hand insight into the legal challenges faced by under trial prisoners. NAM has also represented the North Delhi Municipal Corporation as a panel advocate, primarily in matters related to labor and industrial disputes. In the field of research, MAM has published papers on mediation, judicial custody, uniform civil code, and recent criminal law reforms under the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. Her academic work was recognized at the National Congress organized by Maharashtra National Law University, Nagpur, where ma'am received the Best Paper Presentation Award for her paper on the impact assessment of recent criminal laws in India. We are deeply honored to have you with us today, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you so much, Avneet, for such a warm welcome. And it's been my privilege to be here and to share my thoughts regarding to intellectual property agreements. Now I'm going to share my screen. Just give me a minute.
Ma'am, if there's any issue in screen share, ma'am, it is visible now. Yeah, am I audible to you? Yes, ma'am. So my today's lecture is intellectual property agreement. So before proceeding to the intellectual property agreement, I would like to, you know, I would like to enhance that what is the objective of this lecture. It will define IP, intellectual property and intellectual property agreements, and it will explore its types, its benefits and legal frameworks. And we will also discuss the highlight the notable cases and what are in the recent news. Okay. Now, before proceeding to the pursuing to the intellectual property agreements, I am intended to know from you. Do you have any idea about what is actually the intellectual property? Anyone among you? Okay, no issues. Intel. Hello. Yes, please. Yes, please. Good evening, ma'am. Good evening. This is Datta Prasad. Yeah. Intellectual property means whatever the inventions or a new research done by that organization or entity Right. that is in their name. So that's up to the certain period they are having the right, exclusive right of that knowledge or design something, etc. Right. Okay. So, Abhi, it's been like 12th day of your, IEFDP plan. So, अभी तक तो intellectual property के बारे में काफी कुछ जान ही चुके होंगे, right? So, intellectual property, as rightly said by him, that intellectual property, as we all know that, human, and there is a difference between human and animals. Why humans are more, we have some sort of intellectual capability, and because of that only we are here able to elevated ourselves to the civilized society, because we have some intellect, which is given by the almighty, and which is not there in the animals. And to preserve that intellect, as he rightly said, that intellectual property is basically to preserve that creation which is generated by our intelligence, right? So this is known as intellectual property rights. Intellectual property. Now we are going further into intellectual property agreements. So some sort of categories, if I'll say, it's so many people are admitting. Avneet, kindly take into consideration. Yes, ma'am. Okay.
Ma'am, am I audible? Am I audible now? Yes, madam. Okay, Avneet, please take into consideration that I'm able to like convey my voice to you. For Yes, the ma'am. for the long 5 minutes, I was not able to convey my voice. Yes, Right. ma'am. Thank you so much. Let's proceed with that. So I was talking about like human beings are distinguished from animals. Why? So because we have the intellectual capacity endowed on us by the Almighty, right? The human beings have thus elevated themselves to the present civilized society. हमने अपनी इंटेलिजेंस की वजह से ही अपनी ये सिविलाइज सोसाइटी जो है वो बना ली है. और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, दिस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ human intellect, right? It is because by the application of human intellect, that's why it is termed as intellectual property. It is the product, it is the product of intellectual capacities and labor. So intellectual property basically relates to the informations which can be incorporated in tangible objects and can be reproduced in different locations. ये सब आप अभी तक के 10 या 11 आपके लेक्चर्स हो चुके हैं. I guess you are well aware of this. It's just a brief intro of what is basically the intellectual property, right? Like categories. If we are talking about the categories of intellectual properties, so we have patent, copyrights, trademark, and trade secrets. Avneet, is it clear to you? Is it visible? Yes, ma'am. Okay, thank you. So these are the certain basic categories of intellectual property. Now, the question arises is that what is the basic importance of intellectual property in the modern economy? See, intellectual property, as we discussed, is basically the innovations, right? It's basically the creation of our intelligence, and because they cannot be framed into physical parameters, that's why we called it as intellectual property. And if we talked about like importance of intellectual property in modern economy, we are well aware that in most of the companies,
Okay, let me give me a brief of this also. Like intellectual properties, say categories of intellectual property when we are talking about. So inventions, अगर हम बात करते हैं inventions से, so inventions they are protected by patents, right? Copyright से क्या होता है, जैसे literary या आपने कुछ artistic work करा तो that is protected by the copyrights. और कोई symbols है या फिर कोई names है या फिर कोई logos हैं, so they will be protected by the trademarks. And confidential business जो secrets, confidential business informations हैं, they are protected by the trade secrets. Okay. Now, in importance of the intellectual property in the modern economy. Intellectual property, we can say that it is the key driver of innovation. It is competitiveness and economic growth. Yeah, it is, we can say that it is a key driver of innovation, competitiveness and economic growth in today's knowledge-based economy. It transforms creative ideas. Okay, it transforms creative ideas, inventions, and brand identity into valuable assets that can be protected, traded, and monetized. तो हमारा अगर strong IP protection होगा, तो strong IP protection will encourage research and development, and it will attract investments, fosters entrepreneurships, and enables business to expand globally. And in sectors like technology, or you can say pharmaceuticals or entertainments and designs, intellectual property not only safeguards creators' rights, but it also fuels jobs creation and strengthens national economies. So what are the intellectual property agreements? If we talked about now, this is the brief which I want to, discuss before pursuing to the intellectual property agreements, which is my topic for today's discussion. If we talked about intellectual property agreements, we all are professionals. Some of us are very, practicing advocates, and some might be the students of the legal profession. So we are well aware about the, as still we have discussed that what is intellectual property, and we are well aware that what are agreements. Agreements, it's meeting of mind on the same consensus, right? So intellectual property agreements की जब हम बात करते हैं, तो it is basically a legally binding contract that governs the rights, its obligations and duties of parties regarding the use, its ownership, its protection, its licensing and assignments of intellectual property. Clear? इसमें बेसिकली क्या होता है, एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो गवर्न करेगा हमारे राइट्स को, हमारे ऑब्लिगेशंस को, हमारी ड्यूटीज को, पार्टीज की जो ड्यूटीज होती है उनके ऑब्लिगेशंस को. और इसमें हम डिफाइन करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स के, अभी मैं आपको टाइप्स बताऊंगी तो आप देखोगे कि कितने टाइप्स के हमारे पास बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स हैं, और हम इसको इसमें हम किस तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर्स के राइट्स को, लाइसेंस हम कैसे कर सकते हैं, और असाइनमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या रहता है, राइट? Avneet? Yes, ma'am, you are audible. Okay, fine. At least you acknowledge me. Otherwise, मुझे लगेगा one way lecture चल रहा है. And sure, ma'am. Thank you so much. Okay. अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है? See, there are key clauses in IP agreements. ये कुछ key clauses हैं जो हमेशा हमें intellectual property agreements में डालने ही चाहिए. अब मेरी वीडियो ऑफ है. Okay, am I visible and Yes. audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. सो अब ये जो हमारे कुछ की क्लॉजेज हैं जो हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में डालने ही चाहिए. तो
होने ही चाहिए। ये हमारे क्या होते हैं कि जैसे डेफिनेशंस में हमारे कुछ की टर्म्स हैं, जैसे कि लाइसेंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसकी टेरिटरी क्या रहेगी, और ये क्या नेट रेवेन्यू है। ये सारे बेसिकली की क्लॉजेस हैं जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में होने ही चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रांट्स ऑफ राइट्स मतलब हम किस हद तक या फिर हम कितने राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं नेचर ऑफ राइट्स जो ट्रांसफर हो रखे थे, भी ये हमारा जो राइट ट्रांसफर हुआ है ये हमारा एक्सक्लूसिव राइट है या फिर ये हमारा नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स है। अभी in my further lecture you will able to understand each and every aspects of intellectual property agreements, that's for sure। अब और ये हमारे कुछ की क्लॉजेस होते हैं जो मेंशन होने चाहिए, जैसे कि टर्म्स एंड टर्मिनेशन, हमारी ये कितने ड्यूरेशन के लिए है, और या फिर जब हम टर्मिनेट इसे करने वाले होंगे तो व्हाट आर द टर्मिनेशन क्लॉज फॉर दैट पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। कंसिडरेशन एंड रॉयलिटी, ये क्लॉज बेसिकली होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन और रॉयलिटी क्या रहेगी इसमें, ये क्या इंक्लूड करती है, इंक्लूड्स पेमेंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कंसिडरेशन एज वी ऑल आर अवेयर कि कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन जो है वो एग्रीमेंट्स सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कंसिडरेशन होना ही चाहिए। तो ये जो हमारा कंसिडरेशन और रॉयलिटी का क्लॉज है ये जरूर की क्लॉज होता है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में। वारंटीज एंड रिप्रेजेंटेशंस होनी चाहिए कि भी हमारा अबाउट ओनरशिप्स, ओरिजिनलिटी और नॉन इन्फ्रिंजमेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ये जरूर होना चाहिए। इंडेमनिटी, लीगल लायबिलिटी शेयरिंग, किसकी लिए कितनी लीगल लायबिलिटी है, किस तरीके से शेयरिंग जाएगी, ये सारी चीजें ये बेसिकली हमारे की क्लॉजेस इन आईपी एग्रीमेंट्स में होने चाहिए। गवर्निंग लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, अब अगर कोई डिस्प्यूट्स अगर हो जाता है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट्स अराइज, सो वेदर इट इज रेफर टू द कोर्ट रूम, कोर्ट में हम जाकर इसको करेंगे या फिर हम आर्बिट्रली आपस में आर्बिट्रेशन के थ्रू हम इसको सेटल करेंगे। सो दीज आर द सर्टेन की क्लॉजेस व्हिच हैज टू बी इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। ओनरशिप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, अब इम्प्रूवमेंट क्या होता है, इम्प्रूवमेंट मतलब मैंने आपको कोई अगर फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम गिविंग समथिंग टू यू एंड यू आर मेकिंग सम एनहांसमेंट टू दैट, ठीक है, तो वो ओनरशिप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या रहती है, हु ओन्स मॉडिफाइड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसका रहेगा। तो ये सारे क्लॉजेस बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में होने चाहिए। क्लियर? Please. So now, see, these are certain basic types of agreements। ये अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से असाइनमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, लाइसेंस एग्रीमेंट क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जिसे हम एनडीए के नाम से बहुत प्रैक्टिस में बड़ा यूज करते हैं। एनडीए क्या होता है, जीडीए क्या होता है, जेडीए जिसे हम कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी मैंने किसी की चैट में कुछ एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, सो आई आंसर, मेरे इसके बाद शायद आपको आंसर वो खुद मिल जाएगा, और आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई एम रेडी हियर टू आंसर। अगर टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं भी हो पाता है तो आप अवनीत से मेरा नंबर ले लीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मेल कीजिए, आई विल आंसर टू योर एवरी क्वेरी। ठीक, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या होते हैं, एंड देन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विद आईपी क्लॉज, ये क्या रहेगा, एंड देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, वी विल गोना स्टडी इन फ्यू मिनट्स। सी, एक ब्रीफ अगर मैं आपको दे दूं कि हाँ ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स क्या, सॉरी ये टाइप्स है हमारे एग्रीमेंट्स के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स के। तो असाइनमेंट एग्रीमेंट क्या हुआ, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं असाइनमेंट एग्रीमेंट की, सी, an assignment agreement is a legal contract in which the owner of intellectual property, मैं ओनर हूं तो मैं I'll be considered as an assigner, मैं आपको परमानेंटली ट्रांसफर कर दूंगी अपने ओनरशिप राइट्स को टू दी अदर पार्टी, यानी कि मैंने आपको अगर मैंने ट्रांसफर करा है तो यू विल बी कंसिडर एज एन असाइनी, आई विल बी कंसिडर एज एन असाइनर। ठीक है, वंस द असाइनमेंट इज मेड, the assigner no longer holds any right over the intellectual property unless specified otherwise in the agreement। यानी कि जब हम असाइनमेंट एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो असाइनमेंट एग्रीमेंट्स में हम जो है अपनी पूरी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द एंटायर ओनरशिप, तो द असाइनर
assigner will no longer holds any rights over that particular intellectual property other unless कि उस कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट में कुछ स्पेसिफिकली इस तरीके की चीज मेंशन ना हो. क्लियर? Yes, ma'am. सी अगर मैं जैसे अभी आप ये देख रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, अगर मैं इसके की फीचर्स के बारे में बात करूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स के की फीचर्स क्या रहते हैं, तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में जो कि हमारा असाइनमेंट एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट की फीचर क्या रहेगा कि ये परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है. द ओनरशिप ऑफ द आईपी, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपका पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट्स हो गए या डिजाइन होंगे, ये क्या हो जाता है, दीज आर परमानेंटली ट्रांसफर्ड. परमानेंटली क्या हो जाते हैं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं और दिस इज इररिवोकेबल. रिटन एग्रीमेंट होता है इसमें. अगर आप की फीचर्स की बात करते हो कि असाइनमेंट एग्रीमेंट के की फीचर्स क्या होते हैं, तो दिस इज द रिटन एग्रीमेंट. रिटन एग्रीमेंट होता है फॉर वैलिडिटी मोस्ट आईपी लॉज, जितने भी हमारे आईपी लॉज हैं, जैसे लाइक इंडियन कॉपीराइट एक्ट देख लो या पेटेंट्स एक्ट देख लो या फिर ट्रेडमार्क एक्ट देख लोगे, दे विल रिक्वायर द असाइनमेंट टू बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द बोथ पार्टीज. कंसिडरेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, यूजुअली इन्वॉल्व्स पेमेंट्स जो कि जर्नली लमसम होती है या रॉयल्टी अमाउंट होता है इन एक्सचेंज ऑफ द ट्रांसफर. और क्या होता है इसका स्कोप ऑफ राइट्स ट्रांसफर. द एग्रीमेंट मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द आईपी बीइंग ट्रांसफर्ड. द राइट्स इंक्लूडेड, एग्जांपल रिप्रोडक्शन का राइट ट्रांसफर हो गया है, मॉडिफिकेशन का राइट ट्रांसफर हो गया है, या लाइसेंसिंग हुई है, या फिर ये टेरिटोरियल लिमिटेशंस अगर हैं तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन होनी चाहिए. जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अभी आपको इस असाइनमेंट एग्रीमेंट पे अगर मैं आपको लाइसेंस एक एग्जांपल में बताऊं, तो जैसे कि अगर एक ऑथर है, वो एक नॉवल राइट करता है, ठीक है, और उसके पास, उस ऑथर के पास क्या हुआ कि उसका पास उसका अपना कॉपीराइट हो गया. तो नाउ ऑथर साइंस एंड क्या साइन करता है, वो एक असाइनमेंट एग्रीमेंट साइन करता है विद पब्लिशर पी. पी के साथ एक पब्लिशर है, उसने उसके साथ एक असाइनमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया. अब इस असाइनमेंट एग्रीमेंट के साथ साइन करते ही ट्रांसफरिंग ऑल कॉपीराइट्स इन द नॉवल टू पब्लिशर पी. और उसने फॉर एन एग्जांपल लगा लो कि उस पी नाम के पब्लिशर के साथ उसने फॉर एन एग्जांपल लाइक 10 लाख के कंसिडरेशन में उसने पूरा अपना ये नॉवल के जो कॉपीराइट्स था वो थ्रू एन असाइनमेंट एग्रीमेंट जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं. सो नाउ पब्लिशर पी विल बिकम द लीगल कॉपीराइट ओनर, एंड जो ऑथर है ही कैन नो लॉन्गर रिप्रोड्यूस, अडेप्ट और लाइसेंस द वर्क विदाउट पीज परमिशन. ठीक है, सो पब्लिशर जो पी है, ही कैन ओनली यूज, सेल और फर्दर लाइसेंस द नोवेल एज दे सी फिट. ओके, जैसे उनको ठीक लगेगा वो उस तरीके से करेंगे. अब जो है ऑथर के पास, बिकॉज उसने असाइनमेंट एग्रीमेंट साइन करा है, तो उसके पास अब उसका राइट नहीं होता. ठीक है, अब नाउ दिस इज लाइसेंस एग्रीमेंट्स. सो लाइसेंस एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर लाइसेंस एग्रीमेंट्स. सो लाइसेंस, अब जैसे आपने देखा होगा कि जब हम फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लाइसेंस की बात करूं, ओके फाइन, टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये क्या हुआ, ओके, जैसे कि मैंने एक घर लीज पर लिया यानी कि ओनरशिप तो अभी बैंक के पास ही है, बट आई हैव द राइट टू यूज इट. मेरे पास क्या है, उसको यूज करने का राइट है. तो दीज आर दी सर्टेन लाइसेंस एग्रीमेंट्स. अब लाइसेंस एग्रीमेंट्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या रहता है, लाइसेंस एंड एग्रीमेंट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर, जिसे हम लाइसेंसर कहते हैं, ग्रांट्स अनदर पार्टी लाइसेंसी परमिशन टू यूज द आईपी, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट ट्रांसफरिंग ओनरशिप. यानी कि आपने क्या करा, एक स्कोप को डिफाइन कर दिया. ठीक है, एक स्कोप डिफाइन कर दिया कि हाँ आप इसको इस तरीके से ही यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज इट, वेयर टू यूज इट, एंड फॉर व्हाट पर्पस द आईपी कैन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, जिसे लाइसेंस एग्रीमेंट है, कैन बी यूज होता है. इसकी ड्यूरेशन जो है वो फिक्स्ड होती है कि इसकी लाइक 2 साल के लिए है या 1 साल के लिए है या फिर ये रिन्यूएबल है. सो ये सारी डिटेल्स जो है ये लाइसेंस एग्रीमेंट्स में होती है.
पेमेंट टर्म्स होगी कि रॉयल्टी पर है या लमसम है, या किस तरीके से इसकी पेमेंट टर्म्स रहेंगी। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये टेरिटोरियल लिमिट्स में है, इसकी मॉडिफिकेशन राइट्स हैं या सब लाइसेंसिंग है। जैसे कि मैंने एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं एवरीवन ऑन द स्क्रीन कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या करा, लाइसेंस करा अपने प्रोग्राम को टू बिजनेस, एक बिजनेस को कितने के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अलाउइंग यूज बट कीपिंग ओनरशिप ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब उसने क्या करा है कि अलाउ कर दिया है, लेकिन उसने जो है ओनरशिप जो है वो किसके पास होगी, वो लाइसेंसर के पास ही रहती है। क्लियर? Yes, ma'am. अभी तक कोई दिक्कत? नो मैम। हाँ भाई अवनीत। Oh, ma'am. ठीक है बेटा, ओके। जैसे अब लाइसेंस एग्रीमेंट का जैसे एग्जांपल लेते हैं कि भी जो फिल्म प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अभी आपको मैंने असाइनमेंट एग्रीमेंट का एग्जांपल दिया, वो था एक ऑथर जिसने नॉवल लिखा विद पब्लिशर के साथ। अब लाइसेंस एग्रीमेंट का अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो फॉर एन एग्जांपल की एक फिल्म प्रोड्यूसर है, वो अपने स्ट्रीमिंग राइट्स को जो है वो शो को देता है कि अब फिल्म प्रोड्यूसर्स ने क्या करा कि फिल्म प्रोड्यूसर्स गिव्स अ स्ट्रीमिंग राइट प्लेटफॉर्म राइट्स टू अ शो कि आप मूवी को कितने टाइम तक चला सकते हो, फॉर द पीरियड ऑफ ओनली 3 years। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। क्लियर? Yes, ma'am. Okay dear, so now this is नॉन डिस्क्लोजर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। अब ये नॉन डिस्क्लोजर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट, जिसे हम एनडीए भी कहते हैं, ये क्या रहता है अब देखते हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है, दिस डॉक्यूमेंट आउटलाइंस अ नॉन डिस्क्लोजर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड कंपनी। ये एम्प्लॉय एंड कंपनी के बेसिकली होता है, एंड इट स्पेसिफाइज दैट एनी कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन द एम्प्लॉय हैज एक्सेस टू ड्यूरिंग employment belongs to the company. It also states that any intellectual property conceived by the employee during employment is owned by the company. आपने देखा होगा कि जब आप कहीं ज्वाइन करते हो तो आप लोगों को से एक एनडीए एग्रीमेंट साइन कराया जाता है। वो क्या होता है कि आपका एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम ये साइन करते हैं एज एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ये होता है, कंपनी कह लो आप, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में होता है, जिसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि जो भी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं जो थ्रू दी सोर्सेज ऑफ द कंपनी जनरेट करी गई हैं, वो किसके यहाँ पर, वो कंपनी की ही होंगी। ठीक है, वो किसी और की नहीं होंगी, वो कंपनी की ही होंगी। और वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती हैं कॉन्फिडेंशियल से, चीजें डील करता है एम्प्लॉय, वो सारी की सारी क्या होंगी, कंपनी की होंगी। ठीक है? Yes, ma'am. अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई टर्म्ड फिक्स टर्म्ड होती हैं, या फिर अंटिल की बिकम्स को इन्फॉर्मेशन बेसिकली पब्लिक ना हो जाए। ठीक है, इसमें मे और मे नॉट इन्वॉल्व इन पेमेंट, इस इन एग्रीमेंट्स में मे और मे नॉट, कोई जरूरी नहीं है कि इन एग्रीमेंट्स में पेमेंट हो। ठीक है? Yes, ma'am. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अभी एक मैंने चैट में क्वेश्चन पढ़ा था, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, किसी ने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, तो अभी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये क्या रहते हैं। ठीक है, सो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं,
So this is a legal contract between two or more parties who agree to collaboratively develop a product. कि आप और मैं मिलकर एक प्रोडक्ट को जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है, आप और मैं मिलकर एक प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और हम कोलैबोरेटरी उस चीज, हम एग्री कर रहे हैं उस चीज को कि हम एक प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं या फिर हम एक कोई टेक्नोलॉजी डिजाइन कर रहे हैं, और या फिर हमने क्या करा, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है और हम क्या करते हैं, एंड टू क्लियरली हम उस चीज में जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में हम बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर देते हैं कि किसकी ओनरशिप रहेगी, कितना यूसेज रहेगा, या फिर इसके कमर्शियलाइजेशन जो राइट्स होंगे ओवर द रिजल्टिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके रहते हैं, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या रहेंगे, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के की पॉइंट्स क्या रहते हैं किसी भी एग्रीमेंट में होने के लिए, तो इसमें कोलैबोरेशन होना जरूरी है, दैट इज कि इन्वॉल्विंग दैट इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन टू पार्टीज, बिटवीन पार्टीज, इट नॉट नेसेसरली टू, इट मे बी मोर देन टू। आईपी ओनरशिप होना चाहिए कि जो कि आईपी ओनरशिप होना चाहिए जो कि स्पेसिफाई करे कि वेदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड और एलोकेटेड टू स्पेसिफिक पार्टीज। राइट्स एंड रेवेन्यू शेयरिंग जो होती है इसमें की जब हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये मेंशन होना चाहिए कि राइट एंड रेवेन्यू शेयरिंग क्या रहेगी, जिसमें डिटेल्स हो कि हाउ द डेवलप्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड हो सके, उसका लाइसेंस क्या होगा, और सॉलिड एंड हाउ प्रॉफिट्स एंड रॉयल्टीज विल बी डिवाइडेड। कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर होनी चाहिए कि ऑफन इंक्लूड्स, जो कि हमारा अभी जैसे मैंने बताया कि एनडीए में होता है क्लोज, जो एनडीए क्लॉज होता है टू प्रोटेक्ट शेयर्ड इंफॉर्मेशन, ये भी हमारे को जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में मेंशन करना चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होने चाहिए कि हाँ, अगर हमारा डिस्प्यूट मैकेनिज्म क्या रहेगा, वेदर वी आर रेफरिंग यू नो फॉर रिजॉल्विंग थ्रू आर्बिट्रेशन और थ्रू और थ्रू द लिटिगेशन प्रोसेस। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने एक जीडीए साइन करा टू क्रिएट अ स्मार्ट होम डिवाइस। सो द सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या करा, सॉफ्टवेयर कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट्स द, उसने अपना एआई कंट्रोल सिस्टम उसने अपना कॉन्ट्रीब्यूट करा। हार्डवेयर कंपनी ने क्या करा कि उसने प्रोवाइड करा डिवाइस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी वो उसने डिफाइन करा। और द एग्रीमेंट स्टेट्स दैट द और एग्रीमेंट्स ने क्या डिफाइन, एग्रीमेंट्स में उन्होंने क्या करा कि जो पेटेंट्स है फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल बी जॉइंटली ओन्ड, उन्होंने क्या करा कि जॉइंटली ओन्ड होगा, और जो भी इसका एनी फ्यूचर लाइसेंसिंग रेवेन्यू जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, 60-40 की रेशियो में रहेगा। ये एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर मैं बताती हूँ कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जीडीए का एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एन एग्जांपल देयर आर टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे कोलैबोरेट टू डेवलप अ न्यू कैंसर ड्रग, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि वन पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स पेटेंटेड ड्रग मॉलिक्यूल एंड द अदर प्रोवाइड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज एंड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज। सो तो इन्होंने द जीडीए डिसाइड्स दैट बोथ विल जॉइंटली होल्ड द पेटेंट। इनका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ये एक कंक्लूजन था कि ये जो भी हमारा इस तरीके से रिसर्च से या ड्रग कैंसर, जो हम कैंसर की ड्रग बनाने वाले हैं, मेडिसिन बनाने वाले हैं, और एक पार्टी जो है वो ये चीज कंट्रीब्यूट कर रही है और दूसरी R&D कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इसको हम जॉइंटली होल्ड करेंगे इस पेटेंट को, और जो प्रॉफिट्स होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेल्स विल बी शेयर्ड इक्वली। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now this is employee agreement with an IP clause. अब ये employee agreement with an IP clause क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। Employee agreement with an IP clause is an employment contract. ये क्या होता है, एक तरीके का employment contract होता है that includes specific terms about the ownership, use and protection of intellectual property created by the employees during their employment. Clear? अब अगर जैसे अब मैं इसके पूछूं कि इसके की पॉइंट्स क्या रहेंगे, तो आपको ओनरशिप ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूजुअली स्टेट्स दैट एनी इन्वेंशन हो गया, डिजाइन हो गया, या फिर क्रिएटिव वर्ड मेड, कोई भी हमने काम करा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट
तो वो जो होगा इज बीइंग ऑफन, और वो हमने जो डेवलपमेंट करी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करी है, और वो हमने कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए की है, तो दैट विल बी बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयर एंड नॉट टू यू, दैट मीन्स नॉट टू द एम्प्लॉय, दैट विल बिलोंग्स टू द एम्प्लॉयर। तो इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय एग्रीमेंट विद एन आईपी क्लॉज, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो इसका स्कोप क्या होता है बेटा? अगर हम इसके स्कोप के बारे में बात करें, इट्स स्कोप, इट्स लाइक इट मे कवर पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, सॉफ्टवेयर कोड्स, डिजाइन कोड्स। इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है ओपन इंक्लूड्स अ नॉन डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन फॉर सेंसिटिव कंपनी इंफॉर्मेशन। आप कितने भी देख रहे होते हो कि आईटी कंपनीज में, या वैसे भी अगर आप कहीं देखो, कहीं एज एन एम्प्लॉयमेंट आप ज्वाइन करते हो, तो ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विद एन आईपी क्लॉज जरूर होगा कि आपने हमारी कंपनी में थ्रू दी ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आपने हमारी कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए कोई भी इनोवेटिव चीज करी है, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, दैट विल बी दी कंपनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर? और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इसमें, जो कि मे प्रिवेंट एक्स एम्प्लॉइज फ्रॉम यूजिंग और डिस्क्लोजिंग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आफ्टर लिविंग। इस तरीके के बेसिकली जो एम्प्लॉय एग्रीमेंट्स विद एन आईपी क्लॉज होते हैं, इसमें बेसिकली पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी डालते हैं कि आप इवन इफ यू आर लिविंग आवर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, यू आर नॉट सपोज्ड to disclose these kinds of things, जो भी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन थी या ये थी, आप आफ्टर लिविंग भी आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी इन्हीं एग्रीमेंट्स में फॉल कराते हैं। इन्वेंशन असाइनमेंट क्लॉज जरूर होता है कि ट्रांसफर ओनरशिप फॉर एम्प्लॉय क्रिएटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू द एम्प्लॉयर इफ मेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। अगर मैं अब इसका एक एग्जांपल लूं, सो लाइक ठीक है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, ही जॉइंस आर टेक्निकल सॉफ्टवेयर कंपनी, और यू कैन से अ टेक कंपनी, और उसने एक साइन करा है एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लॉज। तो उसने क्या किस तरीके से एक क्लॉज आपने देखा होगा कि ऐसे मेंशन होता है कि ऑल इन्वेंशन, सोर्स कोड, डिजाइन्स क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूजिंग कंपनी टाइम। अगर आप कहीं देखोगे इस तरीके का आपको जरूर कहीं ना कहीं क्लॉज मिलेगा। अब आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट साइन करते हुए ढूंढना ये क्लॉज कहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है। और रिसोर्सेज और रिलेटेड टू द कंपनीज बिजनेस शेल बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। इस तरीके से आपको वहां पर जरूर एक आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स में विद आईपी क्लॉज में ये मेंशन होता है। सो अगर अब उस इंजीनियर ने, जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, अगर कुछ भी कोई एल्गोरिथम डेवलप करी है फॉर द कंपनीज के रिसोर्सेज को यूज करते हुए ड्यूरिंग दी कंपनी आज, तो वो जो उसका एल्गोरिथम उसने जो डेवलप करा है वो अब इंजीनियर का पेटेंट नहीं होता है, दैट इज ओन बाय द कंपनी, उसको ओन करती है और नॉट द इंजीनियर, राइट? So now this is टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स। अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स जिसे हम कहते हैं टीटीए शॉर्ट फॉर्म में। मेरी वॉइस कोई बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है? मतलब मेरे को थोड़ी आदत है ऊंचा बोलने की। No, ma'am. This was perfect. Fine. फाइन ना? ओके, कोई डिस्ट्रैक्शन हो तो बता दीजिएगा। तो अब ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम ट्रांसफर, और मैंने वीडियो भी बेटा इसलिए ऑफ कर रखी है बिकॉज अभी मेरे घर में 4 लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट ऑफ माय वीडियो, आई मेक इट ऑन इन सम टाइम्स, ओके, जस्ट दे फिनिश देयर वर्क। Okay, ma'am. हाँ, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं इस लेक्चर में। तो हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट क्या है, इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनर ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है transferor grants another party transferee the rights to use, adapt or commercialize that technology. It is commonly used to share patents, trade secrets, process, software or technical
नो हाउ। अब अगर देखो, इट इज कॉमनली यूज टू शेयर पेटेंट्स, ट्रेड्स, ये तो अब आपने देख ही लिया, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर एंड टेक्निकल नो हाउ से होता है। और इसके की पॉइंट्स क्या होंगे? इट्स बेसिकली इसका पर्पस क्या है? टू एनेबल अनदर पार्टी टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, research or commercialization. This is the basic purpose of this technology transfer agreement. इसका scope क्या रहता है कि it can be complete transfer of ownership or a license to use, and it includes technical documentation, training, support, and sometimes equipment also. पेमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, में इन्वॉल्व लमसम पेमेंट्स हो सकती है, या फिर रॉयल्टीज हो सकती है, या फिर बहुत ही माइलस्टोन पेमेंट्स हो सकती हैं। इंडस्ट्रीज जैसे होगी फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, या फिर आईटी की इंडस्ट्रीज होगी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज होगी, दे बेसिकली यूज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। सी, कोई भी हमारी जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है या हमारा बिजनेस ग्रो करता है, इसमें हमें कहीं ना कहीं, आप देखोगे ये जो हमने अभी पढ़े कि इतने तरीके के हमने एग्रीमेंट्स पढ़े, असाइनमेंट हो गया, लाइसेंस हो गया, एनडीए हो गया, जेडीए हो गया, नाउ टीटीए हो गया, ये सारे एग्रीमेंट्स आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारे को इन्हीं एग्रीमेंट्स के थ्रू हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमारी इकोनॉमी जो है के लिए बहुत मेजर इफेक्ट ये लाते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स होते हैं। वो कैसे ला रहे हैं? क्योंकि आप इन्हीं के थ्रू ही अपना बिजनेस रन करते हो, और अगर इसमें ही जब आप ड्राफ्टिंग करते हुए या इन्हीं में ही अगर कुछ फ्लॉ आ जाता है एग्रीमेंट्स में, तो देन देयर विल बी अ डिफिकल्टी। अब व्हाई आईपी एग्रीमेंट्स आर नेसेसरी? अब कि आपको ये नेसेसरी क्यों होते हैं? आईपी एग्रीमेंट्स आर नेसेसरी बिकॉज दे अवॉइड डिस्प्यूट्स को अवॉइड करते हैं। इस्टेब्लिश क्लियर ओनरशिप, आपके पे क्या आएंगे? ये क्लियर ओनरशिप ले आएंगे कि हाँ, आपको पता है कि किस तरीके से आपने, अगर आईपी एग्रीमेंट्स में ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है, तो यू विल बी अनेबल टू मेंशन योर इन योर ड्राफ्टिंग और क्लॉज में आपने क्लियर ओनरशिप के क्लॉजेस डाल रखे हैं, सो देन यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश द क्लियर ओनरशिप, enable commercialization. That's why IP agreements are very necessary. See, अब ये कुछ ड्राफ्ट्स मैंने यहाँ पर बेसिक ड्राफ्ट्स हैं। दिस इज असाइनमेंट एग्रीमेंट का एक बेसिक ड्राफ्ट है कि किस तरीके से ये बनता है। इसके बाद मैं आपको इसका एक और भी एक इंफॉर्मेटिव मैं आपसे साथ एक शेयर करूंगी, तब आप देखना कि ये, और इसको मैं डिफाइन में बताती हूँ कि और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस असाइनमेंट एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि एग्रीमेंट इस तरीके का ड्राफ्ट होता है असाइनमेंट एग्रीमेंट का, जैसे कि दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन पर्टिकुलर डेट मेंशन होगी, असाइनर का नेम मेंशन होगा, हैविंग इट्स एड्रेस मेंशन होंगे। ये लाइन मुझे ही दिखाई दे रही है, आप लोगों को भी दिखाई दे रही है? Yes, ma'am, it is visible. Actually, one participant have annotated the screen. ये किसी पार्टिसिपेंट ने कर दिया है? Yes, ma'am. चलो, देन इट्स नॉट माय फॉल्ट। नाउ यू हैव टू बियर इट। चलो, तो ये क्या है, मैं वही सोच रही हूँ कि यार ये मुझे ही दिखाई दे रहा है या फिर क्या पंगा है। चलो, एनीवेज, सो इस तरीके के असाइनमेंट्स होते हैं। तो ये बेसिक ड्राफ्ट है, अगर आप देखेंगे इस असाइनमेंट में। चलो, हाँ, ये द एग्रीमेंट इज मेड ऑन, बेसिकली हम डेट मेंशन करते हैं, बिटवीन असाइनर नेम्स होगा, हैविंग इट्स एड्रेस होगा, असाइनी का नेम होगा, हैविंग इट्स एड्रेस, और ट्रांसफर ऑफ राइट्स के हम बताएंगे कि द असाइनर जो है उसने हेयर बाय असाइंस द टू द असाइनी ऑल द राइट्स, क्या क्या राइट्स ट्रांसफर कर रहा है, और उसके बाद उसका टाइटल क्या रहेगा, उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, यानी फॉर एन एग्जांपल पेटेंट नंबर क्या है, कॉपीराइट वर्क क्या रहेगा, ये सारी चीजें मेंशन होती है। कंसिडरेशन क्या रहता है वो मेंशन होता है, जैसे कि असाइनी को इतना अमाउंट जो है वो पे होगा, ठीक है। और इफेक्टिव डेट क्या होगी कि ये जो हमारा असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट एग्रीमेंट जो है, ये किस डेट से इफेक्टिव होगा। गवर्निंग लॉज क्या रहते हैं कि दिस एग्रीमेंट शैल बी गवर्न बाय द लॉज ऑफ इंडिया रहेंगे, या क्या आर्बिट्रेशन क्लॉज में रहोगे, या किस तरीके से आप इसको, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। एंड देन यहाँ पर साइन होते हैं, विटनेसेस भी होते हैं इफ यू रिक्वायर्ड, देन इफ देर इज अ नीड। ओके,
अब ये देखो, एक ये मैंने आईपी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट बनाया है कि हाँ ये होता है आईपी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, अगर आप देख सकते हैं तो दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज मेड ऑन पर्टिकुलर डेट डाल दी है, 1st day of August या 12th date of August, whatever, between licensor जो भी है XYZ Innovations Private Limited having its office, उसका ऑफिस मेंशन होगा और लाइसेंसी की भी डिटेल्स मेंशन होगी। ग्रांट ऑफ लाइसेंस क्या रहेंगे कि भी लाइसेंसर हियर बाय कितना ग्रांट करता है, वो ग्रांट्स की लाइसेंसिंग नॉन एक्सक्लूसिव कर रहा है वर्ल्ड वाइड और रॉयल्टी बियरिंग लाइसेंस टू यूज द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसका पेटेंट नंबर होगा और लाइसेंस कितने ड्यूरेशन के लिए है। सो जो ओवरऑल मैंने आपको की पॉइंट्स बताए कि हर लाइसेंस में इतने इतने की पॉइंट्स होने चाहिए, या मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी कि हाँ ये इसके की फंक्शंस करेक्टरिस्टिक्स हैं एक एग्रीमेंट की, वो मोर और लेस हर एग्रीमेंट में हम आप देखोगे कि जब आप ड्राफ्टिंग करते हो तो ये सारे एग्रीमेंट्स में ये रिटेन करने जरूरी है। यहाँ पे फिर देन साइन हो जाते हैं कि देखो लास्ट लाइन अगर आप देखते हो कि द लाइसेंसी एग्री टू पे द रॉयल्टी ऑफ 5% ऑफ नेट रेवेन्यू, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने एक ड्राफ्ट बनाया है जिसे हम कहते हैं नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का ड्राफ्ट है, एनडीए कहते हैं कि ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो कि हमने अभी आपको डिस्कस करा था कि क्या होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन, उसी तरीके से हम डेट डालेंगे, बिटवीन पार्टीज के नाम डालेंगे, बिटवीन ए और बी और कलेक्टिव पार्टी, हम जैसे भी डालना चाहें पूरा नाम उस तरीके से पूरी डिटेल्स डालते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में बेसिक जो क्लॉज होता है वो होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज द पार्टीज एग्री टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ड्यूरिंग डिस्कशंस रिलेटिंग, तो जो भी आपके कॉन्फिडेंशियलिटी में प्रोजेक्ट वर्क आ रहा है या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती हैं। इसका हमने किस तरीके से यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया वो भी मेंशन होता है कि ये मैं दिस आर द जस्ट ड्राफ्ट सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ एनडीए जब हम नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जब हम ड्राफ्ट कर रहे हैं तो क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पीपीटी इफ आई एबल टू गेट द टाइम, मैं आपको इसको एक और डिटेल वर्जन बताती हूँ कि ये किस तरीके से बनते हैं। ड्यूरेशन होगी कि एनडीए शेल रिमेन इन फोर्स 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के, फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग कितने साल के लिए ये मेंशन होता है। रेमेडीज क्या होंगी कि भी अगर आपने कुछ ऐसा ब्रीच करा तो व्हाट विल बी द लीगल रेमेडीज, दिस इज आल्सो बीइंग मेंशन्ड इन दैट, जर्नली होता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जीडीए एग्रीमेंट्स का, एक ड्राफ्ट देख लेते हैं कि जीडीए में क्या क्या रहता है। तो दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग में सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा कि ड्राफ्टिंग तो एक शुरुआत ऐसे ही होती है क्या, और उसका जो बेसिक कंटेंट होता है उसी पे ही हमें फोकस करना होता है कि जो हमारी जो इंटेंशन है whether we are able to inculcate in that particular agreement defining it as a joint development agreement, और अगर नहीं तो क्या चीज हमारी मिस हो जाती है। जब वो मिसिंग हो जाती है या फिर हम एग्रीमेंट्स में कोई चीज लैक कर जाते हैं, वही चीज फिर जो है आगे जाके डिस्प्यूट्स का कारण बनती है, ठीक है। सो पर्पस क्या है कि द पर्पस जो जरूर से मेंशन होना चाहिए कि दोनों पार्टीज जो है वो जॉइंटली डेवलप करना चाहती हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन को ये जॉइंटली, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को ये जॉइंटली डेवलप करना चाहती हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहेगा कि भी पर्टिकुलर जो 3 या 2 पार्टीज हैं, पार्टी ए जो है वो ये कंट्रीब्यूट कर रही है, पार्टी बी जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। और ओनरशिप्स के राइट्स क्या रहेंगे कि जो भी जॉइंट ओनरशिप से जो भी कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है वो बेसिकली किसकी ओनरशिप रहेगी, या तो दोनों की इक्वल शेयरिंग रहेगी या फिर 60-40 रहेगा, वट एवर द रेशियो। रेवेन्यू शेयरिंग क्या रहेगी, प्रॉफिट्स रहेंगे या फिर रॉयल्टीज रहेगी, या किस रेशियो में रहेगी। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है, बोथ पार्टीज जो एग्री करते हैं टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है जी।
ये एम्प्लॉयमेंट एक मिनट, ठीक है। नाउ दिस इज एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का एक बेसिक ड्राफ्ट है कि ये इस तरीके से बनता है कि पोजीशन क्या रहेगी, एम्प्लॉय विल सर्व एज डेजिग्नेशन, उसकी डेजिग्नेशन क्या रहेगी। आईपी ओनरशिप क्लॉज इसमें बेसिकली होता है कि हाँ, ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इन्वेंशंस है, डिजाइन्स है, या फिर जो वर्क्स हैं क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहेंगे, यूजिंग कंपनी रिसोर्सेज और फिर रिलेटिंग टू द कंपनी बिजनेस शेल बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर। बेसिकली मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीमेंट विद द आईपी क्लॉज से होता है वो यही होता है कि आप कुछ भी कंपनीज के रिसोर्सेज को यूज करते हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप कुछ भी जनरेट कर रहे हैं वो आपका नहीं होता है, वो कंपनी का होता है। ठीक है। और इसमें क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी आती है कि एम्प्लॉय शेल नॉट डिस्क्लोज और यूज द कंपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट प्रायर रिटर्न कंसेंट। अब ना आ जाओ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स क्या रहते हैं? अगर हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स के बारे में बात करें तो इसका अगर आप ड्राफ्ट देखते हैं तो इसी तरीके से बनेगा। टेक्नोलॉजी का डिस्क्रिप्शन आएगा कि ट्रांसफर कर रहे हैं, एग्री टू ट्रांसफर द राइट्स टू यूज और कमर्शियलाइज। स्कोप, it must have the scope की includes provisions of technical documents, training, necessary know-hows होंगे, payments होगी और duration इसमें मेंशन होती है। चलो अब एक कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ केस लॉज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अभी रीसेंट के ये केस लॉज हैं, जैसे कि अगर अब आप देख रहे होंगे मेक माई ट्रिप वर्सेस गूगल LLC booking.com 2024 SCC ऑनलाइन का, ये मैं साइटेशन मेंशन कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी रिसेंट का ही जजमेंट है, लास्ट ईयर का। सो इसमें क्या हुआ था कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट वाया कीवर्ड्स एडवर्टाइजिंग। ओके, अच्छा, अब अगर मैं इस केस के बारे में डिस्कस करूं कि हाँ इस केस के बारे में बेसिकली क्या था, तो अगर इसके ब्रीफ फैक्ट्स अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो इसमें मेक माई ट्रिप जो होती है वो अलेज करती है ट्रेडमार्क को। मेक माई ट्रिप अगर आपने देखा होगा, मेक माई ट्रिप और एक इसके फैक्ट्स ऐसे थे कि मेक माई ट्रिप्स अलेज इट्स ट्रेडमार्क, जो कि मेक माई ट्रिप एंड MMT वर यूज्ड एज गूगल एड्स कीवर्ड्स बाय booking.com। तो उनकी जो फैक्ट्स थे वो ये था कि यहाँ पर MMT मेक माई ट्रिप और MMT जो कि गूगल एड्स से यूज हो रहे हैं कीवर्ड्स बाय booking.com से, ये दोनों चीजें यूज हो रही हैं। तो क्लेम किया गया कि दैट डाइवर्टेड ट्रैफिक एंड कॉस्ट कंफ्यूजन। सो does और क्या क्वेश्चन था कि does using competitors trademark as a keywords and ads constitutes infringement under the Trademarks Act। सो इसमें कंटेंशंस क्या डाली गई, जो मेक माई ट्रिप्स की तरफ से कंटेंशन थी वो ये थी कि यूज ऑफ ट्रेडमार्क एज अ कीवर्ड इज अ डिसेप्टिव एंड अनफेयर। ठीक, कि डिसेप्टिव एंड अनफेयर है। गूगल एंड booking.com ने बोला कि नो कंफ्यूजन, यूजर्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांड्स। मैं आपको बस ब्रीफ में आपको मेंशन कर रही हूँ, ये मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिया है सो दैट यू कैन रीड इट। इसके बेसिक फैक्ट्स यही थे। सो जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेक माई ट्रिप की जो प्ली थी वो डिसमिस कर दी थी। ठीक है, मेक माई प्ली की डिसमिस कर दी थी प्ली, और ये कहा था, हेल्ड हुआ था इसमें कि दैट मियर यूज ऑफ ट्रेडमार्क कीवर्ड्स डज नॉट अमाउंट टू इंफ्रिंजमेंट इन एब्सेंस ऑफ कंफ्यूजन। ठीक, रीजनिंग इसके पीछे क्या दी गई थी, बेसिकली अगर आप देखें इसके पीछे जो रीजनिंग दी गई थी कि ट्रेडमार्क लॉ प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कंज्यूमर कंफ्यूजन्स। बोथ ब्रांड्स आर वेल नोन, सबको पता है कि MMT क्या है और सबको पता है कि मेक माई ट्रिप क्या है, तो यूजर्स आर अनलाइकली टू बी मिसलेड। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि ये दोनों ही MMT और मेक माई ट्रिप जो है ये वेल नोन ब्रांड्स हैं और इसकी वजह से यूजर्स आर अनलाइकली टू बी मिसलेड। सो कोर्ट एम्फसाइज डिजिटल लिटरेसी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल क्लियरिटी इन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक, Yes, ma'am. अवनीत अभी तक सब समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन? No, no, ma'am. ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अब एक और केस इसमें मैं मेंशन करा है, जैसे दिस इज इंटर IKEA सिस्टम्स BV वर्सेस IKEA होम स्टूडियो LLP।
साइटेशन है इसकी, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है 2024 का, 2024 18 दिसंबर का। इसमें बेसिकली ट्रेडमार्क डिल्यूजन और पासिंग ऑफ पे फोकस किया गया था। ठीक है, अब इसके फैक्ट्स क्या थे कि फैक्ट्स अगर आप बात कर पाए, जैसे कि अब आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे IKEA और IKEY, ठीक है, ये दो बेसिकली वर्ड्स हैं जो कि अपने आप में बहुत सिमिलर से लग रहे हैं। तो बेसिकली जो था इशू ही यही था कि इकया और इकया और आईकी, ठीक है, फॉर यूजिंग अ डिसेप्टिवली सिमिलर नेम्स एंड लोगोस। तो इसके जो आईकी वाले थे, उन्होंने हैड मल्टीपल ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटेड इन द सेम इंडस्ट्रीज। उन्होंने मल्टीपल ट्रेडमार्क्स ऑपरेशन एप्लीकेशंस फाइल कर रखी थी और वो ऑपरेट कर रहे थे सेम ही इंडस्ट्रीज में। तो इशू क्या आया इसमें कि IKEY डिसेप्टिवली सिमिलर टू IKEA, जो कि हमें भी सुनने में लग रहा है, वैसे भी अगर आप प्रोडक्ट को देखो तो यही बेसिकली इशू था कि इसमें जो है IKEY इज डिसेप्टिवली सिमिलर टू IKEA, इकाई इज सिमिलर टू इका। ठीक है, सो डज दिस अमाउंट टू पासिंग ऑफ और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट? सो इसमें कंटेंशंस क्या डाली गई कि इकाई जो है इज फोनेटिकली एंड विजुअली सिमिलर, causes confusion and unfair advantages। और जो इकाई है IKEAY coin term not intend to mislead and distinct branding। सो इसमें जजमेंट क्या आया कि कोर्ट ग्रांटेड परमानेंट इंजंक्शन दे दिया गया अगेंस्ट IKEAY को, परमानेंट इंजंक्शन दे दिया गया और ऑर्डर करे गए, शट डाउन करे गए उसके इकाई के वेबसाइट्स और कैंसिल करे गए सारे ट्रेडमार्क्स एप्लीकेशंस। Why so? Because of the similarity and deceptiveness। रीजनिंग क्या दी गई इसमें? रीजनिंग ये दी गई कि अप्लाइड ट्रिपल आइडेंटिटी टेस्ट इसमें लगाया गया, क्लासिकल ट्रिनिटी टेस्ट लगाया गया फॉर पासिंग ऑफ, और फाउंड करा गया क्या कि लाइकलीहुड ऑफ कंफ्यूजन एंड बैड फेथ अडॉप्शन। ठीक है, Yes. और रिकॉग्नाइज करा गया कि IKEA जो है इज अ वेल नोन मार्क विद ट्रांसबॉर्डर रेपुटेशंस। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, अब ये देखो एक और केस हम देख लेते हैं। इस केस में था ये लिनोवो सिंगापुर पिटी लिमिटेड वर्सेस RPD वर्कस्टेशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये 2024 का केस है, मद्रास हाई कोर्ट का, 3 दिसंबर का। इसमें ट्रेडमार्क रेटिफिकेशन और डिसेप्टिव सिमिलैरिटी पे बेसिकली फोकस किया गया था। अब इसके फैक्ट्स क्या थे कि लिनोवो ने चैलेंज करी रजिस्ट्रेशन, किस चीज की रजिस्ट्रेशन चैलेंज करी? थिन बुक। ठीक है, इसमें भी ऐसे डिसेप्टिव था। एक वर्ड अगर आप ये जजमेंट पढ़ोगे, इसमें 2 वर्ड्स बेसिकली आते हैं, एक आता है थिन बुक, एक आता है थिंक बुक। ठीक है, थिन बुक एंड थिंक बुक। सो इसमें क्या हुआ कि फैक्ट्स कहते हैं कि लिनोवो ने चैलेंज करा रजिस्ट्रेशन ऑफ थिन बुक बाय RPD वर्कस्टेशंस। ठीक है, RPD वर्कस्टेशंस के लिनोवो ने चैलेंज करा रजिस्ट्रेशन ऑफ थिन बुक बाय RPD वर्कस्टेशंस। सो क्लेम क्या करा गया? क्लेम इट वाज डिसेप्टिवली सिमिलर टू इट्स थिंक फैमिली ऑफ मार्क्स। ठीक है, ये क्या डिसेप्टिवली सिमिलर है थिंक फैमिली ऑफ मार्क्स के लिए। सो इशू क्या अराइज हुए इसमें कि इज थिन बुक डिसेप्टिवली सिमिलर टू थिंक बुक? ठीक है, क्या हुआ कि इज थिन बुक इज डिसेप्टिवली सिमिलर टू थिंक बुक? सो और शुड द ट्रेडमार्क बी कैंसिल अंडर सेक्शन 57 ऑफ द ट्रेडमार्क्स एक्ट। ठीक, सो कंटेंशंस जो थी लिनोवो की, वो लॉन्ग स्टैंडिंग यूज ऑफ थिंक मार्क्स और थिन बुक कॉजेस कंफ्यूजन। ये क्या कर रहे थे? कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे थे। तो RPD जो वर्कस्टेशंस है, उन्होंने क्लेम्ड ओरिजिनलिटी और नो इंटेंट टू मिसलीड, ऐसा उन्होंने कंटेंशंस अपनी रेज करी। लेकिन जजमेंट जो आया, वो क्या था कि कोर्ट ऑर्डर्ड कैंसिलेशन ऑफ थिन बुक ट्रेडमार्क। कोर्ट ने क्या करा कि थिन बुक का जो ट्रेडमार्क था वो कैंसिल करा, डायरेक्टेड रजिस्ट्रार टू रिमूव इट फ्रॉम दी रजिस्टर। जो ट्रेडमार्क को जो रजिस्टर कराते हैं वो डायरेक्ट करा गया कि इसको वहां से रिमूव करवाया जाए।
सो रीजंस क्या दिए गए इसके पीछे? बेसिकली जो रीजंस थे वो ये थे कि फाउंड फोनेटिक एंड विजुअल सिमिलैरिटी, फोनेटिकली भी थिन बुक और थिन बुक में फोनेटिकली अगर आप देखोगे कि सिमिलैरिटीज हैं, और लिनोवर मार्क जो है हैड एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस एंड रेपुटेशन है उसकी, और रजिस्ट्रेशन वाज ग्रांटेड ड्यू टू नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय रजिस्ट्रार। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन केसेस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स यूज बाय यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होता है, जैसे रियल वर्ल्ड यूज केस हो गया। अब ये चीज थोड़ा सा अब आप देख लें कि कॉन्ट्रैक्चुअल न्यूएंसेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स क्या रहते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कॉन्ट्रैक्चुअल न्यूएंसेस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स रेफर टू द स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रोविजन इन एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी contract that go beyond the basic terms and conditions, ensuring clarity on rights, obligations, and risk management between parties. These nuances are important because intellectual properties are intangible, territorial, and time bound, and small wording differences can change the meaning and enforceability of the agreement. सो अगर हम इसके की कॉन्ट्रैक्चुअल देखते हैं कि इसमें क्या है, तो ये क्या होता है, स्कोप ऑफ राइट्स ग्रांटेड, कि वेदर द राइट्स आर एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव है, सोल है, या फिर एग्जैक्टली व्हाट यूजेस आर अलाउड। टेरिटोरियल लिमिट्स डिफाइन होनी चाहिए कि द ज्योग्राफिकल एरिया वेयर द राइट्स अप्लाई, एग्जांपल के सिर्फ इंडिया में अप्लाई हो रहा है या फिर वर्ल्ड वाइड अप्लाई होगा। ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग द राइट्स और रिस्ट्रिक्शंस लास्ट, कितने टाइम तक ये रिस्ट्रिक्ट करेंगी। पेमेंट स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनडीए क्लॉजेस क्या होंगे, मॉरल राइट्स एंड एट्रीब्यूशंस क्या रहेगा, वेदर द क्रिएटर नेम्स मस्ट बी क्रेडिटेड, उसको क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन होनी चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस होने चाहिए कि जैसे कि आपकी चॉइस ऑफ लॉ क्या रहेगा, आर्बिट्रेशन रहेगा या फिर लिटिगेशन रहेगा। टर्मिनेशन कंडीशंस होनी चाहिए कि सर्कमस्टांसेस अंडर विच द एग्रीमेंट कैन बी एंडेड। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन अ डेवलपर एंड अ कंपनी, माइट टुक सिंपल एट फर्स्ट, बट जो डेवलपर होता है उनको ये सारी चीजें जो है वो कंसिडरेशन में लानी चाहिए कि जब द डेवलपर ग्रांट्स द कंपनी द राइट्स टू यूज द सॉफ्टवेयर, बट कॉन्ट्रैक्चुअल न्यूसेंस में इंक्लूड की क्या क्या आ सकती है इसमें न्यूएंसेस, कि भी टेरिटरी सिर्फ इंडिया में इंक्लूड करो, पर्पस क्या होना चाहिए, इंटरनल बिजनेस है, इंटरनल बिजनेस यूज है, नो रीसेल। ठीक है, एक्सक्लूसिविटी होनी चाहिए कि नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस है ये। पेमेंट क्या रहेगी, ठीक है, ये सारी टर्मिनेशन क्या रहेगा, गवर्निंग लॉज क्या रहेंगे, इंडियन लॉ रहेगा, आर्बिट्रेशन इन दिल्ली रहेगा, चंडीगढ़ रहेगा, पंजाब रहेगा, कहाँ रहेगा, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सी दीज आर सर्टन कॉमन पिटफॉल्स, और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए कि क्या होता है कि जनरली हम लोग वेग डेफिनेशंस जो हैं वो देखते हैं कि वेग डेफिनेशंस यूज हो रखी होती है, इनकम्प्लीट पेमेंट टर्म्स होती हैं, या फिर मिस्ड टर्मिनेशन क्लॉज जो होते हैं वो मिस्ड हो जाते हैं। तो ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। वी हैव टू बी मोर फोकस्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग दीज एग्रीमेंट्स और व्हाइल साइनिंग दीज एग्रीमेंट्स। अब ये कुछ चीजें अगर आप देखोगे कि ये रिसेंट न्यूज में थी, इंडिया पेटेंट सर्च। ओके, अब अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इंडिया ने ग्रांट करी है, अगर आप देखो 1.03 लाख पेटेंट इन फाइनेंशियल ईयर वन, इंडिया ने ग्रांट करे हैं 1.03 लाख पेटेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 to 24। ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि रिफ्लेक्ट किसके करे, रिफ्लेक्ट्स अ सर्ज इन इनोवेशन एंड इम्प्रूव्ड आईपी क्लियरेंस टाइमलाइंस। ठीक है, ये न्यूज में था भी, तो मैंने आप रिलेट करके वो भी मेंशन करा है इसमें। आर्बिट्रेशन इन आईपी ये होना चाहिए। ओके, अब क्या है कि कोर्ट्स में आप देखो, कोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली फेवर कर रहे हैं आर्बिट्रेटर को फॉर रिजॉल्विंग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, कोर्ट जो है वो वैसे भी आर्बिट्रेशन को फेवर कर रही है। अदरवाइज भी देखो, बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी इन दी कोर्ट्स वी आर एक्चुअली फोकस ऑन दी एडीआर्स की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंटरनेशनल एफटीएज,
ओके। अब इंडिया और स्विट्जरलैंड ने, इंडिया एंड स्विट्जरलैंड एफटीए इंक्लूड्स आईपी क्लॉजेस। अब आप देखोगे कि ये है ऑनगोइंग नेगोशिएशन एम्फसाइजेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। ठीक है, सो these things were certain in news. ओके, ग्लोबल आईपी एग्रीमेंट्स एंड ट्रेंड्स हैं, क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग डायनामिक्स, ये सारी चीजें थी इसमें। अब strategic use of IP agreements क्या रहनी चाहिए? Enhancing innovation pipelines, increasingly company valuation, building collaborative ecosystems. These are certain books which you can refer for reading your intellectual property agreements. ये कुछ 5-6 बुक्स मैंने मेंशन करी हैं जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी बुक्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स के ऊपर। जैसे आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड प्रैक्टिस ये है, और ये ड्राफ्टिंग इन एग्रीमेंट्स इन डिजिटल एज, ये बहुत अच्छी बुक है माइकल एल स्टार्ट की। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पी नारायण, दिस इज इंग्लिश बुक और दिस इज हिंदी बुक, और बहुत अच्छी बुक है ये भी। और ये सारी बुक्स मैंने मेंशन करी है, ये आप पढ़ सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स के लिए। सो कंक्लूजन और टेक अवेज क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली द कोर बिजनेस टूल्स। हमें अपने आप को अपडेट रहना चाहिए ऑन लॉ एंड ट्रेंड्स पे, और लीगल गाइडेंस जो है वो इस चीज के लिए बहुत ही एसेंशियल है। अब मैं आपको एक बेसिकली दिखाना चाहती हूँ। Am I audible? Am I audible? Yes. ठीक है, स्क्रीन Yes. दिख रही है आपको बेटा अभी? हेलो, Yes, ma'am. ये असाइनमेंट एग्रीमेंट दिख Ma'am, रहा है it is स्क्रीन पे? visible. ठीक है। सो अगर आप देखो Ma'am. कि हाँ, तो ये असाइनमेंट एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी, तो इस तरीके से होते हैं कि जैसे फैक्ट सिनेरियो मैंने डाल दिया कि इंस्पायर्ड बाय डिस्प्यूट्स ऑफ इन इंडियन पब्लिशिंग सच एज नजमा, ये पूरा इस तरीके से दिस एग्रीमेंट असाइंस कॉपीराइट्स फ्रॉम ऑथर टू पब्लिशर फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। असाइनमेंट एग्रीमेंट क्या हो गया कि दिस एग्रीमेंट असाइनमेंट इज मेड ऑन दिस तरीके से, जो मैंने आपको बताया था बिटवीन, ये इस तरीके से बनते हैं एंड, और इसमें असाइनर और असाइनी की डिटेल्स आ जाती हैं। वेयर एज द असाइनर इज द सोल एंड एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लिटरेरी वर्क टाइटल एज शेडोज इन द रेन। ठीक है, assigners agrees to permanently transfer all the rights, titles and interest in the work to the assignee. Sorry, sorry to interrupt, but it is just folder name, not the particular file, ma'am. Sorry, Ma'am, it is not visible like full proper. It is visible, folder visible, but not the actual file. okay, wait. Yes, ma'am.
अब दिख रहा है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes. चलो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जैसे कि ये असाइनमेंट एग्रीमेंट का मैं एक सैंपल दिखा रही हूँ कि इस तरीके से असाइनमेंट एग्रीमेंट बनते हैं, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि दिस असाइनमेंट एग्रीमेंट इज मेड ऑन 15th day of January। ठीक है, और इस तरीके से वेयर एज द असाइनी इज द सोल एंड एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द लिटरेरी वर्क शेडोज इन द रेन। ये डाल दिया कि भी इस तरीके से उसने काम करा था, प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट। फिर उसके बाद नाउ देयरफॉर इट इज एग्रीड एज फॉलोज कि क्या असाइनमेंट्स ऑफ राइट्स क्या होंगे कि द असाइनर इररिवोकेबली असाइंस टू द असाइनी ऑल कॉपीराइट्स, एडेप्टेशन, ट्रांसलेशंस एंड परफॉर्मेंस राइट्स इन द वर्क फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, कंसिडरेशन क्या रहेगा, जैसे मैंने भी आपको सारे एग्जांपल्स दिए ही थे। ठीक, वारंटीज एंड इंडेमनिटी क्या रहेगी, द असाइनर वारंट्स ओरिजिनलिटी एंड इंडेमनिफाइज द असाइनी अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। इज इट क्लियर, विजिबल ना? Yes, ma'am. ठीक है डियर। सो वारंटीज एंड इंडेमनिटी जो होते हैं, इस तरीके के हम ये सारे क्लॉजेस उसमें डालते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द असाइनमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, द असाइनर warrants originality and indemnifies the assignee against the third party claims. Governing laws governed by the law of India, disputes resolutions by the arbitration in New Delhi. If anyone among you wants to have the PPT which is made by me or this examples of this assignment agreement, so I'll share with Avneet. ठीक है, you can ask her. Avneet, if anybody wants this, so I'll share that. Yes, ma'am. ओके, अब लाइसेंस एग्रीमेंट क्या रहता है, ये उसका मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि लाइसेंस एग्रीमेंट जैसे बेस्ड ऑन ओटीटी स्ट्रीमलाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर प्रोड्यूसर्स लाइसेंस फिल्म्स और फिक्स्ड ड्यूरेशन विद रॉयल्टीज। लाइसेंस एग्रीमेंट्स हो गए, these license agreement is made on 5th March। इस तरीके से ग्रांट ऑफ लाइसेंस क्या रहेगा, द लाइसेंसर ग्रांट्स द लाइसेंसी अ नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू स्ट्रीम द फिल्म एटर्नल। ये कितने टाइम के लिए ये फिल्म आप मूवी आप स्ट्रीम कर सकते हो फॉर 3 years। पेटेंट क्या रहेगा, ₹15 पर व्यू, क्या पर क्वार्टरली, क्या क्या रहता है, रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी, सब लाइसेंसिंग आप नहीं कर सकते। गवर्निंग लॉज क्या रहेंगे कि लॉ ऑफ इंडिया रहेगा, जुरिस्डिक्शन मुंबई में रहेगा। इस तरीके से ये लाइसेंस एग्रीमेंट का एक ड्राफ्ट है। ठीक है, उसी तरीके से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हो गए कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में अगर हम जाते हैं तो फैक्ट सिनेरियो की बात करें, इंस्पायर्ड बाय एनडीएस इन स्टार्टिंग अप फंडिंग राउंड्स प्रोटेक्टिंग प्रोप्राइटी एल्गोरिथम। आपने इस तरीके से बनाया कि ये एनडीए बनता है इस तारीख को, और फिर दिस पार्टी, दिस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस दिस डेवलपर के बीच में क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, सोर्स कोड क्या रहेंगे, एल्गोरिथम्स वगैरह जो भी हैं, एंड बिजनेस प्लान्स क्या रहेंगे, ऑब्लिगेशंस, नो डिस्क्लोजर और यूज बियॉन्ड एग्रीड और प्रोजेक्ट स्कोप्स, टर्मिनेशन 5 years फ्रॉम साइनिंग, रेमेडीज क्या रहेंगी, इंजंक्शंस हैं, डैमेज फॉर ब्रीचेस हैं, क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है, अब जीडीए जैसे कि मैंने आपको बताया भी, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट क्या रहते हैं, बेस्ड ऑन फार्मास्यूटिकल कोलैबोरेशंस वेयर 2 companies को डेवलप ड्रग्स एंड शेयर आईपी। तो इसमें क्या रहने वाला है, दिस जीडीए इज मेड ऑन फर्स्ट एंड बायो वर्सेस दिस। ठीक है, 2 कंपनीज हैं, उनके बीच में 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, उसमें क्या रहेगा, पर्पस क्या रहेगा, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ एन एंटी डायबिटिक ड्रग का पर्पस जरूर मेंशन होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके क्या रहेंगे, जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये जरूर मेंशन होना चाहिए। ओनरशिप क्या रहेगी, रेवेन्यू क्या रहेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी, 10 साल के लिए है, 20 साल के लिए है, कितने टाइम के ऑब्लिगेशंस ये रहेगा, ये मेंशन रहेगी। अब ये जैसे एम्प्लॉय एग्रीमेंट विद आईपी क्लॉज में रह गया, मॉडल्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आईटी कंपनीज असाइनिंग कोड ओनरशिप टू द एम्प्लॉयर। ठीक है, और this agreement is made on the 20th July 2000 between this Innotech। ये आ गया, पोजीशंस आगे से सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या रहेगी, आईपी ओनरशिप, ऑल वर्क क्रिएटेड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज कंपनी प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विद आईपी क्लॉज में यही रहता है। और कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, परमानेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेंसिटिव डाटा डिस्क्लोजर्स रहेगा। अब जिसे हम टीटीए कहते हैं,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट की बात करते हैं तो फैक्ट सिनेरियो इंस्पायर्ड बाय यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप, कमर्शियलाइजिंग पेटेंट हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स हो गए, दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन द 10th, उस तरीके से हम डालते हैं। ये हर में ही, ये लाइन तो हर में ही, हर एग्रीमेंट में दिस लाइन हैज टू बी देयर। और बिटवीन क्या रहेगा, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी, पेटेंट सोलर कोटिंग टू इम्प्रूव पैनल एफिशिएंसी, स्कोप क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, और ये सारी चीजें ये ड्राफ्ट्स जो हैं बेसिकली रहते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. सो आई एम वाइंडिंग अप दिस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्या है, अंकिता वर्मा, थैंक यू सो मच डियर अंकिता। हाँ हाँ, पूछिए प्लीज, क्वेश्चंस पूछिए। Ma'am, now we open the floor for question and answers. हाँ हाँ, थोड़ा जल्दी प्लीज। हाँ, Yes, ma'am. because I'm having my another meeting scheduled. Ma'am, we'll take 1 or 2 questions. Rest of the questions we'll send to you, ma'am. हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कितने क्वेश्चंस भेज दो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन टेकअप कर लेती हूँ। Yes. पूछिए। Hello. हाँ जी। Ma'am, this is Datta Prasad. I have a question. Generally, most of us meet with these situations. हाँ Some documents is stamped with the Copyright Act, like as some Indian standards or international standards. Okay. हाँ But the same documents means if you want that document, we have to go with the authorized purchaser website or like that, and we can purchase it. But your voice is so, I mean, please be louder, I'm not able to get you Okay. properly, or you can text your question, I'll answer you accordingly. Okay. My question is simple, ma'am. There are multiple books or standards are available which are having copyright stamping, like as Indian standard, international standard, or any design books are like that. But the same books are available with a different websites at free of cost. Very true, it is happening. But what could be the consequences if it is available easily, and as an emergency one can maybe many of the people are using it. So who is exactly culprit or liable for this in infringement of the IPA, means Copyright Act? Of course, they should be liable because they are actually infringing the copyright of that particular, इसी तरीके से तो जो हम पायरेसी का भी इशू लेकर आते हैं, पायरेसी भी क्या है, Yes, यही है ना। Yes. मैंने कोई बुक बहुत मेहनत से बनाई, ठीक है, उस बुक को मैंने कॉपीराइट कराया। अब जैसे कि आपने बोला कि मैं तो अपने एक रॉयल्टी के अमाउंट पे दे रही हूँ, बट उसकी कॉपीज बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल हैं। Yes. हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये बहुत सारी अच्छा, मैं अन्विता में दे दूंगी अपना मोबाइल नंबर और कांटेक्ट नंबर, ठीक है बेटा। ये जो है ऑफ कोर्स दे आर लायबल, बिकॉज ये क्या आते हैं, ये कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट में ही आ रहे हैं। तो वो जो हमारे अब आप देखो, जैसे अगर आप इफ यू आर परसुइंग पीएचडी और डॉक्टरेट्स कर रहे हो, तो कितने सारे पब्लिकेशंस को रिट्रैक्ट कर देते हैं। वो क्यों रिट्रैक्ट कर देते हैं? बिकॉज क्या होता है कि पब्लिकेशंस वाले भी और जो बंदा लिख रहा है वो भी यहाँ पे भी पब्लिश करवा रहा है, वहां पे भी पब्लिश करवा रहा है। तीन जगह पे वो पब्लिश हो रहा है। So of course, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो they are liable for the penalties which are defined under the copyrights infringement. Means who is uploading the document, they will liable, or who is using that? Because using is multiple users. हाँ, multiple users they cannot be मतलब multiple users को तो आप नहीं कर सकते हो ना, कि those Yes, who are uploading with the intention कि हाँ हम इसको deceive कर लेंगे, वो liable होंगे। ठीक है? Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Anyone else? Ma'am, Please. we'll take the last question. Please enlighten us to how to get registered in IPR. आईपीआर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ओके Yes. बेटा, आईपीआर में रजिस्टर के लिए यू हैव टू फर्स्ट, एक आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर कराने जा रहे हो, तो पहली बात तो ये कि आपने कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअली डेवलप करा है। उसका फिर एक अपने पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंगली एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जैसे दिल्ली में कहीं है और फिर नोएडा में कहीं होगा। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं कि कहीं कहीं से हैं, तो हर जगह का अपना अपना एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। वहां पर आपको एक एप्लीकेशन लेकर जानी थी, मिनिमल सी एक आईपीआर की एप्लीकेशन पे एक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है।
और वो दैट हैज टू बी इनोवेटिव। और जब वो आप इनोवेटिव वो है, वो सारे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लेके जाते हो, उसमें सारी मेंशंस होते हैं कि हाँ ये किसी का हमारा कॉपी नहीं है, या मैंने ये किसी से इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब मेंशन करके आप जाते हो, और देन दे आर आफ्टर पेइंग द सम अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, द रजिस्ट्रार ऑफ दैट पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन विल रजिस्टर योर इनोवेशन एज अ पेटेंट और कॉपीराइट जो भी रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. होपफुली आप लोगों को लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। प्लीज मुझे रिवर्ट बैक कीजिएगा। थैंक यू Thank you so much, एंड ma'am. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरा जोन क्रिमिनल लॉ है, तो कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्रिमिनल लॉ पे बात करते हैं, मजे मजे आएंगे। Thank you so much, ma'am. Sure, ma'am. And Okay. on behalf of organizing committee, I would like to extend a sincere gratitude to you, ma'am, for delivering such a thoughtful and insightful session today. Thank We you. are truly thankful to you, ma'am, not only for accepting our invite, but also taking the time to guide and inspire all the participants. Thank you so much, ma'am. Thank you. Namaste. Thank you.